ہاں، اگر ایک ایسے فارم کا تصور کیا جائے جہاں خودکار ڈرونز پتے پیلے ہونے سے پہلے ہی بیماری کا نقشہ بنا لیتے ہوں، اور جہاں گایوں کو محض ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں منتقل کرنے سے خطرناک طفیلی کیڑے خود بخود بھوکے مر جاتے ہوں۔ جی بالکل۔ تو یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں ہے، بلکہ یہ خیبر پختونخوا کی زراعت کا بالکل قریبی مستقبل ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جے کیو گلوبل ایگریکلچر کی جانب سے پیش کیے گئے ایک انتہائی اہم پروفیشنل سیمینار پر بات کر رہے ہیں۔ صحیح، یہ واقعی ایک چشم کشا سیمینار ہے۔ ہاں، اور اگر ہم اس پریزنٹیشن کی پہلی سلائیڈ کی منظر کشی کریں تو اس سلائیڈ میں ہم خیبر پختونخوا کے سرسبز اور خوبصورت سیڑھی نما کھیتوں پر ایک ڈرون اڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جو زراعت، جدید ٹیکنالوجی اور ماحولیات کے ایک بہترین امتزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ زبردست۔ اور اس انقلابی ویژن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے خالق کو جاننا ہوگا۔ یہ شاندار تحقیق جناب محمد جاوید قمر کی کاوش ہے، جو ایک انتہائی معزز سینئر سوائل سائنٹسٹ اور ایگریکلچرل کنسلٹنٹ ہیں۔ اچھا جی، ان کی اس جامع تحقیق نے نہ صرف روایتی زراعت کی خامیوں کی نشاندہی کی ہے، بلکہ جدید دور کے مسائل کا ایک انتہائی سائنسی اور قابل عمل حل بھی پیش کیا ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ تو چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے اسٹریٹجک کراپ ڈائیورسٹی۔ اس سلائیڈ پر ہم لہلہاتے کھیتوں کا ایک خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سلائیڈ فصلوں کی حکمت عملی کے بارے میں ہے۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ گندم کی کاشت یا ویٹ کلٹیویشن کا ہے، جو ہمارے علاقائی غذائی تحفظ یعنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح، اور اسی سلائیڈ میں مکئی اور جوار یعنی میز اینڈ سورگم کا بھی ذکر ہے، جو انسانوں اور جانوروں دونوں کی غذائیت کے لیے گہری اہمیت کی حامل فصلیں ہیں۔ مطلب یہ دونوں کے کام آتی ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ہم معاشی پہلو سے دیکھیں تو گنا، جسے ہم شوگر کین کہتے ہیں، وہ ہماری مقامی چینی کی صنعت کے لیے ایک بنیادی معاشی محرک یعنی اکانومک ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے۔ بالکل، لیکن جناب محمد جاوید قمر کی تحقیق کا جو سب سے اہم نقطہ مجھے لگا وہ فصلوں کی عدل بدل یعنی کراپ روٹیشن ہے۔ جی، وہ بہت ضروری ہے۔ میرا مطلب ہے فصلوں کی عدل بدل سے قدرتی طور پر مٹی کی غذائیت یعنی سوائل نیوٹرینٹس اور زرخیز مٹی، جسے ہم فرٹائل سوائل کہتے ہیں، وہ بحال ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے ایک عام مثال سے سمجھیں تو فصلوں کی عدل بدل زمین کے لیے بالکل ایک متوازن غذا کی طرح ہے۔ یہ بہت ہی زبردست مثال دی ہے۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کے جغرافی حوالے سے بات کریں، خاص طور پر مردان اور سوابی کے علاقوں کی، تو وہاں گنے اور تمباکو کی مسلسل کاشت زمین کو تھکا دیتی ہے۔ صحیح۔ تو جب وہاں کے کسان فصلوں کی عدل بدل کرتے ہیں تو مٹی کی صحت قدرتی طور پر بحال ہوتی ہے۔ یہ خالص سائنس ہے واقعی۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کراپ پیتھولوجی، پیسٹس اینڈ بوررز۔ اس سلائیڈ میں مکئی کے تنے میں کیڑوں کا حملہ اور پھل کی مکھی کا لائف سائیکل دکھایا گیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم سلائیڈ ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ رس چوسنے والے کیڑے یعنی پلانٹ ہاپرز پودے کا رس چوستے ہیں، جس سے چینی کی پیداوار، جسے شوگر ییلڈ کہتے ہیں، وہ نمایاں طور پر کم ہوتی ہے۔ اچھا، اور اس میں تنے کی سنڈی یعنی سٹیم بوررز کا بھی ذکر ہے، جو تنے کے اندر سرنگ بناتی ہے، جس سے خطرناک بیماری جنم لیتی ہے، ڈیڈ ہارٹ یا ڈیڈ ہارٹ۔ یہ ڈیڈ ہارٹ اصل میں کیا ہے؟ دیکھیں، ڈیڈ ہارٹ دراصل اس حالت کو کہتے ہیں جب سنڈی پودے کے بالکل درمیانی حصے کو کھا جاتی ہے۔ جب دل ہی مر گیا تو پودا سوکھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پی کے خاص طور پر سوات کے آڑو کے باغات کو دیکھیں تو وہاں پھل کی مکھی، جسے بیکٹروسیرا زوناٹا یا پیچ فروٹ فلائی کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ کیسے نقصان پہنچاتی ہے؟ یہ مکھی فصل کی بالائی تہ یعنی ایپیڈرمس کے بالکل نیچے اپنے انڈے دیتی ہے۔ لاروا اندر ہی پھل کو سڑا دیتا ہے۔ یہ تو بہت نقصان دہ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم بس کیمیکل سپرے شروع کر دیں؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے تحقیق میں انسداد حشرات کا مربوط نظام یعنی انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ یا IPM تجویز کیا گیا ہے۔ یہ حیاتیاتی کنٹرول اور مخصوص کیڑے مار ادویات کو یکجا کرتا ہے۔ صحیح۔
यानी दोस्त कीड़ों को बचाना भी जरूरी है। जी बिल्कुल। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर। इसमें हम ग्रीन हाउस के अंदर सब्जियां और एक खराब शिमला मिर्च की तस्वीर देख सकते हैं। हाँ, ये जो ग्रीन हाउसेज हैं या ग्रीन हाउसेज, ये कुदरती नशोनुमा के मौसमों को तवील करने के लिए माइक्रो क्लाइमेट्स यानी माइक्रो क्लाइमेट्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब हम मौसम को अपनी मर्जी से थोड़ा तब्दील कर लेते हैं। बिल्कुल। और इसमें पॉलीथीन शीट्स या पॉलीथिलीन कवर्स नुकसानदेह शुआओं यानी यूवी रेस को रोकती हैं और ज़रूरी हरारती तवानाई, जिसे थर्मल एनर्जी कहते हैं, उसे महफूज रखती हैं। लेकिन वो जो खराब शिमला मिर्च की तस्वीर है, वो किस चीज़ की निशानदेही कर रही है? ये एक इंतबाह है। वन जगहों पर जहाँ नमी ज़्यादा होती है, वहाँ मिर्चों पर एंथ्रोकिनोज फूंदगी के जरासीम, जिन्हें एंथ्रोकिनोज फंगल स्पोर्स कहते हैं, उनके फैलाव की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है। अच्छा, यानी नमी का कंट्रोल ना हो तो बीमारी लग सकती है। जी हाँ, लेकिन अगर कंट्रोल्ड माहौल को दुरुस्त तरीके से चलाया जाए तो ये कीमती फसलों के लिए पैदावार फी मुरब्बा मीटर यानी यील्ड पर स्क्वायर मीटर को ज्यादा से ज्यादा करता है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एडवांस्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स। इसमें खेत में बिछी हुई ड्रिप इरिगेशन की पाइपलाइंस नजर आ रही हैं। ये निज़ाम वाकई एक इनकलाब है। ये कतरा कतरा निज़ाम, जिसे ड्रिप सिस्टम्स कहते हैं, ये पानी और हल पजीर खादों यानी सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स को बराहे रास्त जड़ों तक पहुंचाता है, जिसे रूट सोन कहा जाता है। तो इससे पानी की बचत होती होगी? जी बिल्कुल। ये तरीका रिवायती आबपाशी के मुकाबले में पानी के बुखारात बनकर उड़ने, जिसे इवेपोरेटिव वाटर लॉस कहते हैं, उसे नुमायां तौर पर कम करता है और नमी की हिदायती फराहमी गैर ज़रूरी जड़ी बूटियों यानी वीड स्पीशीज की अफजाइश को सख्ती से रोकती है। ये तो एक तीर से दो शिकार वाली बात हो गई। हाँ, और अगर हम इसे केपी के जुनूबी इजला जैसे करक या बनू के तनाजुर में देखें, जहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ ये माइक्रो इरिगेशन इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है द एरा ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर। इस स्लाइड की मंजरकशी करें तो मिट्टी से निकलते हुए छोटे पौधे और डेटा एनालिटिक्स का एक तस्वुर नजर आ रहा है। जी दुरुस्त। ज़रात, जिसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर कहते हैं, ये वसाइल को बेहतर बनाने और पैदावार बढ़ाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि इसमें जीपीएस की मदद से चलने वाली मशीनरी का जिक्र है, जो केमिकल्स का ज़िया या केमिकल वेस्टेज कम करती है। बिल्कुल। और बर वक्त तज्जियात यानी रियल टाइम एनालिटिक्स, ये रिवायती काश्तकारी को पेशन गोई पर मबनी क्रॉप मैनेजमेंट या प्रेडिक्टिव क्रॉप मैनेजमेंट में तब्दील कर देते हैं। यानी किसान को पहले से अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है। जी, और बढ़ती हुई आबादी की खुराक पूरी करने के लिए टेक्नोलॉजी का ये इंजमाम, जिसे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कहते हैं, अब बहुत ज़रूरी हो गया है। वाकई। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। इसमें हम एक वसी खेत पर केमिकल स्प्रे करता हुआ एक ज़राई ड्रोन देख सकते हैं। ज़राई ड्रोन्स या एग्रीकल्चरल ड्रोन्स वसी खेतों में केमिकल के इस्तेमाल के तरीके को बिल्कुल बदल देते हैं। ये ड्रोन्स, जिन्हें यूएवीज भी कहते हैं, ये गीली या घनी फसलों यानी वाटर लॉग्ड फील्ड्स तक बासानी पहुंच सकते हैं, जहां शायद आम ट्रैक्टर फंस जाए। बिल्कुल। और उनके खुदकार परवाज के रास्ते या ऑटोमेटेड फ्लाइट पाथ्स बगैर इंसानी गलती के 100% रकबे की कवरेज को यकीनी बनाते हैं। और एक और बड़ा फायदा जो इसमें बताया गया है, वो ये है कि फजाई स्प्रे भारी मशीनरी को खेत से बाहर रखता है। जी, जिसकी वजह से जमीन के सख्त होने यानी सॉइल कंपैक्शन कहते हैं, उस अमल को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ये एक नया जाविया है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मैट्रिक्स, फिक्स्ड विंग वर्सेस रोटरी यूएवीज। यहाँ एक तरफ हवाई जहाज नुमा यानी फिक्स्ड विंग ड्रोन है और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर नुमा यानी मल्टी रोटर ड्रोन दिखाया गया है। इन दोनों के मकासद मुख्तलिफ है। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स या फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हवाई दबाव पर इन्हिसार करते हैं और तवील परवाज यानी लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट्स के काबिल होते हैं। और मल्टी रोटर ड्रोन्स या मल्टी रोटर ड्रोन्स अमूदी उड़ान और ऐन निशाने पर मुंडलाने, जिसे हवरिंग प्रिसिजन कहते हैं,
इसकी सहूलत फराहम करते हैं। तो फिर इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? देखिए, फिक्स्ड विंग का बेहतरीन इस्तेमाल हजारों एकड़ रकबे की तेजी से नक्शा साजी, जिसे रैपिड फोटोग्रामेट्री कहते हैं, उसके लिए है, जबकि मल्टी रोटर पेचीदा जमीनों पर मखसूस जगहों पर स्प्रेइंग यानी स्पॉट स्प्रेइंग के लिए मौजू है। हाँ, तो खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों के लिए तो ये मल्टी रोटर बहुत जबरदस्त रहेगा, है ना? जी बिल्कुल, वहाँ की नाहमवार जमीनों के लिए ये एक नेमत से कम नहीं। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मल्टी स्पेक्ट्रल क्रॉप मॉनिटरिंग। इसमें हमें ड्रोन के कैमरे के जदीद सेंसर्स नजर आ रहे हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स या मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स पौधों से मुनक़िस होने वाली नजदीक जेरे सुर्ख रोशनी यानी नियर इंफ्रारेड लाइट का पता लगाते हैं। अच्छा, ये तो काफी तकनीकी लग रहा है। इसका किसान को क्या फायदा? फायदा ये है कि ये पौधों के तनाव की पैमाइश के लिए NDVI यानी NDVI का हिसाब लगाता है। इससे किसान ज़ाहिरी अलामात ज़ाहिर होने से पहले ही ग़िज़ाई या पानी की कमी, जिसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज और वाटर स्ट्रेस कहते हैं, उसकी निशानदेही कर सकते हैं। वाह, यानी बीमारी के ज़ाहिर होने से पहले ही पता चल जाता है। बिल्कुल, और इस बरवक्त तशखीस से इंतहाई हदफी कार्रवाई यानी टारगेटेड इंटरवेंशंस को मुमकिन बनाया जाता है, जिससे फसल और सरमाए दोनों की बचत होती है। ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है डेयरी फार्मिंग एंड हर्ड मैनेजमेंट। इसमें हम साफ पानी पीती हुई गायें और एक जदीद डेयरी फार्म का मंजर देख रहे हैं। ज़राअत के बाद मवेशी परवरी बहुत अहम है। बेहतरीन डेयरी फार्मिंग के लिए मवेशियों की जीनियात और सेहत यानी बोवाइन जेनेटिक्स एंड हेल्थ की मुसलसल निगरानी दरकार होती है। इसमें एक बहुत दिलचस्प तस्वुर बारी बारी चराने का है, जिसे रोटेशनल ग्रेजिंग कहते हैं। ये चरागाहों को बंजर होने से तो बचाता ही है, लेकिन ये तफैली कीड़ों के हयातियाती चक्कर यानी पैरासाइट लाइफ साइकिल्स को भी तोड़ता है। जी हाँ, ये एक कुदरती तरीका है बीमारियों से बचने का। इसके अलावा दूध देने वाली गाय को रोजाना साफ और शफाफ पानी, जिसे क्लीन अनकंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं, इसकी भारी मिकदार में जरूरत होती है। और दूध दोहने से पहले हवाने की सख्त सफाई साड़ू की बीमारी को पैदा होने से रोकती है। जी, साड़ू, जिसे मैस्टाइटिस कहते हैं, डेयरी फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है और सफाई ही इसका बेहतरीन हल है। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं, जिसका उन्वान है वेटरनरी पैथोलॉजी LSD। इस स्लाइड में एक जानवर की जिल्द पर उभरी हुई तकलीफदेह गिल्टियां दिखाई गई हैं। ये बहुत संगीन बीमारी है, लंपी स्किन डिजीज, जिससे लंपी स्किन डिजीज या LSD कहते हैं। ये जुगाली करने वाले जानवरों में चीचक का एक शदीद वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरल पॉक्स इन्फेक्शन है। ओह, और ये जो गिल्टियां हैं, ये जानवर की पूरी जिल्द पर सख्त और तकलीफदेह मुर्दा रसूलियों की शक्ल में जाहिर होती हैं, जिन्हें हम नेक्रोटिक नोड्यूल्स कहते हैं। तो ये फैलती कैसे है? ये वायरस मच्छरों और चिचड़ों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए, जिन्हें ब्लड फीडिंग आर्थ्रोपॉड्स कहते हैं, बहुत तेजी से फैलता है। तो फिर इससे बचाव का क्या तरीका है? बड़े पैमाने पर एहतियाती वैक्सीनेशन या मैस प्रोएक्टिव वैक्सीनेशन ही इस उबा का वाहिद तवील मुद्दती हल है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है FMD प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इसमें बीमारी से मुतासरा एक गाय का क्लोजअप मंजर दिखाया गया है। ये मुंह खर बीमारी है, जिसे फुट एंड माउथ डिजीज या FMD कहते हैं। ये एक इंतहाई मुताद्दी वायरल बीमारी यानी कंटेजियस वायरल पैथोजन है, और इसमें भी फौरी वैक्सीनेशन ही बुनियादी दिफा है। अच्छा, इसमें किसानों के लिए क्या हिदायत हैं? अगर जानवर को ये हो जाए तो मुंह के छालों के बावजूद उन्हें नर्म चारा, जिसे पैलेटेबल सॉफ्ट फीड कहते हैं, वो फराहम करना चाहिए। और जाहिर है मुतासरा हिस्सों की सफाई भी करनी होगी। बिल्कुल, मुतासिरा खुरों और मुंह को दिन में 2 बार हल्के जरासीम कुश महलूल यानी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोना चाहिए। और सबसे अहम बात, वायरस के हवाई फैलाव को रोकने के लिए मुतासरा जानवरों को सख्ती से अलग यानी स्ट्रिक्टली आइसोलेट रखना चाहिए। ये बहुत अहम मालूमात हैं। अब मवेशियों से निकलकर पानी की तरफ चलते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फिशरीज, इम्पैक्ट ऑफ ओवरफिशिंग।
हाँ, यहाँ हम समुंदर या दरिया में मछलियों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा जाल देख रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा माहीगीरी एक बड़ा मसला है। मुसलसल और बेदरीग जाल बिछाने से मछलियों की नस्लकुशी के बुनियादी ज़खायर, जिन्हें ब्रीडिंग स्टॉक कहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और बड़ी मछलियों, जिन्हें एपेक्स स्पीसीज कहते हैं, उनके खात्मे से एक्वाटिक फूड वेब यानी आबी ग़िज़ाई ज़ंजीर का तवाज़ुन भी तो बुरी तरह बिगड़ जाता है। जी बिल्कुल, और इसका सीधा असर इंसानों पर पड़ता है। मकामी रिवायती माहीगीरों की बरादरियों को शदीद मौशी ज़वाल या इकोनॉमिक डिक्लाइन का सामना करना पड़ता है। तो इसका क्या हल होना चाहिए, ख़ासतौर पर हमारे दरियाओं के लिए? खैबर पख्तूनख्वा के तनाजुर में देखें, जैसे दरियाए स्वात और दरियाए काबिल हैं, जहां ट्राउट और माहशीर मछली होती है, वहां बहाली के लिए साइंसी बुनियादों पर तयशुदा सख्त माहीगीरी के कोटे या फिशिंग कोटास का निफाज लाजमी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फिशरीज, एक्वाटिक पोल्यूशन एंड इकोसिस्टम। इसमें एक आलूदा आबी ज़ख़ीरा नज़र आ रहा है जिसमें मछलियाँ मौजूद हैं। जी, ये आलूदगी एक खामोश कातिल है। ज़रई केमियावी पानी का इखराज, जैसे एग्रीकल्चरल केमिकल रन ऑफ कहते हैं, ये पानी में जहरीली काई यानी टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स का सबब बनता है, जो सूरज की रोशनी को रोक लेती है। और प्लास्टिक का फजला और सनती मलबा भी तो मछलियों के कुदरती अफजाइश के मस्कन यानी नेचुरल ब्रीडिंग हैबिटेट्स को शदीद नुकसान पहुंचाता है। हाँ, और जब काई बढ़ती है तो अमोनिया की ज्यादती मछलियों के सांस लेने के लिए इंतहाई ज़रूरी हलशुदा ऑक्सीजन, जिसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, उसे ख़त्म कर देती है। मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। ये तो पूरे इकोसिस्टम की तबाही है। बिल्कुल, इसीलिए एक पायदार माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पानी के म्यार की बाकायदा बायोकेमिकल जांच यानी बायोकेमिकल वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इंतहाई ज़रूरी है। वाकई इन तमाम पहलुओं पर गौर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। और इसी के साथ अब हम अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। इस स्लाइड पर हम राब्ता नंबर्स, वेबसाइट और JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर का लोगो देख सकते हैं। अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को समेटें तो हमारा हतमी पैगाम ज़राअत के मुस्तकबिल को बाइख्तियार बनाना यानी एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर है। ये वाज़ेह है कि जदीद टेक्नोलॉजी या प्रिसिजन टेक्नोलॉजी, पायदार काश्तकारी और बीमारियों के जदीद तरीका इलाज को अपनाकर ही हम खैबर पख्तूनख्वा के ज़रई और माशी मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। ज़बरदस्त। सामीन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इस इनकलाबी सफ़र का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। हम सबको JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं उनकी राब्ते की तफसीलात बता देता हूँ। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://www.jqglobalofficial.com। बिजनेस और कंसल्टेंसी यानी बिजनेस एंड कंसल्टेंसी के लिए उनका ईमेल है jqglobalagriculture@gmail.com। और अगर आप व्हाट्सएप पर बराह रास्त हाब्ता या व्हाट्सएप डायरेक्ट सपोर्ट चाहते हैं तो नंबर है +923499984186। जी, ये मालूमात हर उस शख्स के लिए अहम है जो ज़राअत में जिद्दत लाना चाहता है। बिल्कुल। इस सेमिनार का इख्तिताम में एक सवाल पर करना चाहूँगा। सामईन ज़रा सोचिए, अगर खैबर पख्तूनख्वा का हर किसान आज अपने स्मार्टफोन से अपने खेत की मिट्टी का तज्जिया करने के काबिल हो जाए, तो क्या ये सिर्फ ज़राअत का एक इनकलाब होगा या हमारे पूरे मौशी निज़ाम की एक बिल्कुल नई शुरुआत? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।